बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 क्लास 11 का डेवलपमेंट. इन द प्रीवियस एस्पेक्ट्स वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, हाउ डेवलपमेंट इज द not limited in the economic sphere, is the development is in every sphere, whether political, whether social. So we are talking about the overall development. So here development aspects, yesterday also we have seen in the previous section that political development, social development, economic development, administrative development. So every development is for the particular sphere, but whenever we talk about development, it is about the overall development. It's not about the development of the particular part. So it is the ideology which is believing in the overall development of the particular country. So here we will see how few challenges were faced by the notion of development, and previous part we have seen few definitions also that you need to learn. Definitions आप learn करें, उनका मतलब समझें, and then when it is coming exam you need to elaborate them, you need to mention them in the answer. So here then we are going to complete the notion of development. So now let's see, let's start the topic which is development. And now today what we are going to see the challenge of development. क्या challenge है? तो पहला तो ये है कि poverty, पुअर्स की सिचुएशन को इम्प्रूव करना. जब हम बात इक्वलिटी की करते हैं, इक्वल स्टेटस की करते हैं, तो दोज हु आर द नीडी वंस, दोज हु आर द पुअर वंस, उनकी सिचुएशन दैट वी नीड टू इम्प्रूव. द फर्स्ट चैलेंज इज टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द पुअर्स, दैट इज द पॉवर्टी. देन माल न्यूट्रिशन, माल नरिशमेंट, इट मीन्स द पीपुल आर नॉट गोइंग टू हैव द एसेस वॉट एवर दे शुड हैव. जो हमारी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी विथ एवरीवन. वो सभी के साथ होनी चाहिए, सबको वो बेसिक रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि वॉट एवर फूड इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू बी विद द पीपल. सो माल नरिशमेंट के इशू को सॉल्व करना, ये नहीं कि सोसाइटी का एक क्लास जो है वो बहुत अच्छा, they are just having the good food, good quality life, other one is deprived from that. So this one, the second one. Then to improve the situation of unemployment, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को इम्प्रूव करना. कैसे? कि व्हेन द पीपल आर एम्प्लॉयड, जब लोग एम्प्लॉयड होते हैं तो क्या होता है, दे विल अर्न एंड द पर्टिकुलर अर्निंग विल बी एड अप इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, और ऑटोमेटिकली द कंट्री विल बी डेवलपिंग. अब कंट्री जो है वो डेवलप करेगी. सो द सिचुएशन इज देयर वेदर इफ इट इज the country which are having more unemployment, so they need to improve the situation of employment in their area, so it will be developed. So they have to employ, to create the employment create करना चाहिए. Then illiteracy की जो issue है, that is also, if the people are illiterate, so they will not be able to understand the concepts, they will not be able to get the prestigious jobs, or they cannot be the part of intellectual part of the country. So illiteracy is the worst thing whatever the country is having, even it is mostly found in developing and underdeveloped countries. So literacy must be there. Literacy makes a man learned, and the person will be able to think about the particular concept more elaborately. So हमने क्या देखा कि यहाँ पे उसके सामने डेवलपमेंट के एस्पेक्ट के सामने सो मैनी चैलेंजेस आर देयर. क्या क्या है? टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ पुअर, पॉवर्टी को इम्प्रूव करना, माल नरिशमेंट को ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना, और इलिटरेसी को. और ये समस्याएं, दीज ऑल इश्यूज आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ हुम? These issues are coming in front of the countries which are underdeveloped or developing. Under colonial rule resources were overused. अब कहा गया कि भाई इतना इशू कैसे आया? Why we have faced, or the countries are facing these issues? So there is the meaning. क्यों हो रहा है ये? When the countries are going to make the colonies, जब countries कॉलोनी बनती हैं तो क्या होता है, जो कॉलोनी बनती है कंट्री, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली. So in such a manner when the country is going to be exploited,
then the resources are going to be taken by the dominating country. तो जो मदर कंट्रीज होती हैं, जो कॉलोनी बनाती हैं, वो क्या करती हैं, रिसोर्सेज को ओवर यूज कर देती हैं. As we can see, it is in the case of India also. India was earlier called सोने की चिड़िया, golden bird. But what happened? All things, all resources were taken by the Britishers, and they took the resources into their own country. They just converted the resources into the finished one, and in such a way they were developing themselves, and whatever things were gone from the India, so India became the poor one. So this is the thing which happened under colonial rule. Mainly ये colonial rule में ही हुआ जब countries यहाँ पे ईस्ट इंडिया, अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ट्रेड करने के लिए आई, but what it did, they just captured the all resources of India. सारे रिसोर्सेज कैप्चर कर लिया. अब देखिए आप, अब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंट्रीज के टाइप क्या हैं, तो हमें पता है डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जो अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, जापान है, चाइना, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है. देन डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, ये अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पूरी तरह डेवलप नहीं हुई, मतलब डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, बट इट इज़ नॉट टोटली डेवलप्ड. देन अंडर डेवलप्ड कंट्री जो अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं, जहाँ मोस्टली ट्राइबल एरियाज राइड कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो है डेवलपमेंट बहुत स्लो प्रोसेस से होता है. सो स्टिल दोज एरियाज आर कॉल्ड अंडर डेवलप्ड. सो वी कैन सी द डिफ्रेंसिएशन, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री. तीन तरह की कंट्रीज हो गई, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग. अब तीन तरह की कंट्रीज में जो डेवलपमेंट का सिनेरियो होगा दैट विल डिफरेंट. सो नाउ डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्टेड गोल लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ. अब डेवलपिंग कंट्री क्या करेगी, वो अपने आप को डेवलप करने के लिए अपनी एक नई स्ट्रैटेजी अपनाएगी. देयर विल बी द डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू डेवलप देमसेल्फ बाय द डेवलपिंग कंट्रीज. कौन कौन सी होगी, गोल्स क्या होंगे, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट करना. अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट करनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन. जैसा कि हमने देखा था इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हाट हैपेंड, जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था तो क्या हुआ था कि व्हेन द ब्रिटेन वाज डेवलप्ड, इट डेवलप्ड वाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ तो फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ वाया इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. क्यों, क्योंकि इंडिया जो है बेसिकली हमारा गांव में बसता है, बेसिकली रूरल एरिया, एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड होते हैं. तो अगर हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे तो ओवरऑल वी आर गोइंग टू डेवलप आवरसेल्फ. एग्रीकल्चर में न्यू टेक्निक्स को यूज़ करना, न्यू मशीन्स को यूज़ करना, नए पैटर्न यूज़ करना, न्यू तरह की क्रॉपिंग करना. सो दीज विल बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल दोज हु आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट विल बी डेवलप. मतलब जो रिसोर्स जिसके पास है, सपोज किसी के पास एग्रीकल्चर है तो वो उसको इम्प्रूव करे, किसी के पास इंडस्ट्रीज़ की मशीन्स वगैरह हैं तो वो उन्हें इम्प्रूव करे. सो इट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज हाउ दे आर गोइंग टू सी दैट. देन मॉडर्न एजुकेशन. अब एजुकेशन का भी मॉडर्नाइजेशन करें. कैसे, अगर हम एजुकेशन को मॉडर्नाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वी विल लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स, नई स्किल्स को सीखना. क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में स्टिल अभी भी वो एजुकेशन का पैटर्न नहीं है, वो क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि सारे बच्चे स्किल्ड हो पाएँ या उस एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट में यूज़ कर पाएँ. सो इट हैज़ टू बी फोकस दैट, क्या फोकस कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज, गोल क्या डिसाइड किया है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न एजुकेशन. इन पे हम वो फोकस कर रहे हैं. तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो व्हेन वी गॉट द फ्रीडम वी जस्ट मेड 5-year plans. 5-year plans जो हमारे 1950 से स्टार्ट हुए, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया के डेवलपमेंट की. सो हेयर वन मोर एस्पेक्ट यू कैन सी दैट प्लानिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर डेवलपमेंट. अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो वो डेवलपमेंट की एक फर्स्ट स्टेप जो होती है वो प्रूव होती है. सो फ्रॉम 1950 5-year प्लान स्टार्टेड टू बी मेड. अब अलग अलग 5-year प्लान में क्या किया हमने, अलग अलग गोल रखे.
अलग अलग 5 ईयर प्लान में जब हमने अलग अलग गोल रखे तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करी और पॉवर्टी को रिमूव करने की बात करी। सेकेंड प्लान में हमने इंडस्ट्रीज को फोकस किया। So every plan we were changing our strategies to groom ourselves, to develop ourselves. First 5 year plan agriculture, second industry. So gradually in all 5 year plans what we were achieving the goals towards development. हर प्लान में हर 5 years में हमने डेवलपमेंट की ओर अपना एक गोल अचीव करने की बात करी। सो इंडिया वॉज ए एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। सो 47 में हम रिसेंटली फ्री हुए ही थे। सो व्हेन वी मेड द प्लान दैट वॉज मेड इन 1950, तो उसमें हमने एग्रीकल्चर को गोल किया कि भाई हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। सो दिस वॉज द थिंग हाउ वी वर ग्रूमिंग स्टेप बाय स्टेप। फिर हमने ऑपरेशन फ्लड की बात करी, आप 12th में पढ़ेंगे। फ्लड में, ऑपरेशन फ्लड में क्या, जब मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट की बात हुई, जिसमें वर्गीस कुरियन की हिस्ट्री को पढ़ेंगे हम, अमूल को उन्होंने कैसे डेवलप किया। देन वी विल स्टडी अबाउट हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। सो दीज वर द पार्ट ऑफ दोज 5 ईयर प्लान जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में बूम लाया और उससे इंडिया को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली, उसका डेवलपमेंट हुआ। सो दीज वर द पार्ट ऑफ दीज 5 ईयर प्लान्स। देन व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज द डेवलपमेंट मॉडल, अब हमने कहा इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, हमने कहा मॉडर्नाइज करते हैं, हमने कहा मॉडर्न एजुकेशन लाते हैं, तो ये हमारा जो मॉडल है जब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो क्या बात कहते हैं कि जब आप इंडस्ट्रीज लेकर आएंगे तो हमें उसकी कुछ सोशल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। कैसे? अगर आपने बिग डैम बनाए, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनर्जी, जब हमें बिजली उत्पन्न करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, बिग डैम बना दी हमने, बट द पीपल दोज हु आर लिविंग रिजाइडिंग नियर बाय द डैम, व्हाट अबाउट डैम, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसिंग डैम, उनको डिस्प्लेस करके कहाँ भेजा जाए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, माइनिंग इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, या समटाइम्स स्मॉल वंस आर एंगेज देयर, दैट इज ऑल्सो। देन व्हेन द पीपल आर डिस्प्लेस्ड, स्पेशली there was one example, नर्मदा बचाओ आंदोलन was against the सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम पे जब नर्मदा बचाओ, नर्मदा जो नदी है उस पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया, तो द पीपल दोज हु वर रिजाइडिंग देयर हैव क्रिएटेड द इशू। ऑफ कोर्स द पुअर वंस दोज हु वर रिजाइडिंग देयर अर्लियर, सो वेयर दे विल गो। So there was the issue of the displacement of the people, where they will go and how they will survive then. So it was the main issue of that time, how to make the displaced people settle on one place. अगर आपको improvement करना भी है या development करना है तो it should not be in the cost of those, उनको आप displace कर दें, उनको आप underprivileged कर दें। So this cost is really too high. It should not be like that. ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट की, वो कैसे? सपोज फॉर डेवलपमेंट इफ वी वांट टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री, सो वी नीड टू क्लियर द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए पर्टिकुलर लैंड क्लियर करनी पड़ेगी। तो जब हम फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करेंगे तो उससे क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, होल हो रहा है ओजोन लेयर में, पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, सो ग्रीनरी कम हो रही है। So when we are going to use the land for the industries, it is going to pay the environmental cost. Environment जो है, temperature आप देखिए कितना है होता जा रहा है। So these are the things कि when we go for imbalanced development, so many issues are raised, so we have to focus on the balanced development, so the issues should be less and our main focus should be on the balanced development of the every area. हमें हर एरिया का बैलेंस डेवलपमेंट करना चाहिए। सो यहाँ पे हमने आज क्या बात करी बच्चों? आज हमने बात करी कि चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, कि वो किन किन बातों को फोकस करता है तो इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ पुअर, पॉवर्टी को हटाना, माल नरिशमेंट को ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सारे चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट। इनको रिमूव करके ही हम डेवलप हो सकते हैं। दैन वी हैव स्टडीड दैट अंडर कॉलोनियल रूल जो था, उस समय हमने चीज़ों को, रिसोर्सेज को ओवर यूज़ किया। सो हमारे जब रिसोर्सेज ले लिए गए, देन वी बिकेम द अंडर डेवलपमेंट। तो फिर कंट्रीज देखिए हमने 3 तरह की, डेवलप, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप। सो ऑल 3 आर हैविंग द डिफरेंट क्राइटेरिया। डेवलप तो ऑलरेडी डेवलप है ही, पर डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही हैं? दे अडॉप्टेड द गोल लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, देन
कैसे करेंगे वो? इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न एजुकेशन। अब इसके लिए क्या बनाया हमने? 5 ईयर प्लान, जो कि 1950 ऑनवर्ड्स बनाए। देन हमने क्या किया? क्रिटिसाइज अब करते हैं इस मॉडल को, तो क्या कहते हैं? इट इज पेड द सोशल कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट। सोशल कॉस्ट पे किया है इसने, कैसे? जो बिग डैम्स हैं जो वो बनते हैं, इट इज गोइंग टू डिस्प्लेस द पीपल। देन mining industries, of course it's harmful. Industries are of course going to pollute the environment. Then displaced people issues is there, like for example they have given Narmada Bachao Andolan against the Sardar Sarovar Dam. And then environmental cost, when we are going to clearing the forest for the environment, for establishing industries, of course it is going to pollute the environment. Environment को pollute कर देगी। तो ये सारे हमारे challenges हैं। फिर हम आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, assessment of development and how the things were existing in India. That we will study in next part. Still I will say, do read from the book. Don't forget to read from NCERT. Read the whole chapter, because question can come rise from anywhere. So this is the part where we have studied the topic challenge of development. So do revise the topic, do read from the book, and don't forget to write the notes in your copy. That's all for the day. Thank you so much.